Hello, everybody. Welcome back to this amazing session. In this session, we are talking about the power of self discipline. So, let's start this PPT presentation with the first intention is our goal is to reach the knowledge, to reach the destination, uh, to get the self discipline at all. So let's start the this session, this incredible session that we are watching, that we are taking, that we are listening to it, and just enjoy it and share it with your friends, and let do subscribe to our channel and press the bell icon to be notified every update from Wazir the Warrior. So let's start this session. The power of self discipline. Did you know what is discipline? In simple words, in simple terms, I must be say that discipline is the thing which we need to do every day, like every day, without without skipping the days, without leaving the thing which we are doing. That's the only thing we need to take out, and just uh, we need to do every single day without any reason, without any left behind it. So that's the thing only we need to be aware of it. As the power, it seemed the power, the power, you know what I'm saying about is the power of discipline. So the discipline should be there with power. So what is the power of self discipline? So unlocking your potential requires cultivating a strong sense of discipline, which is the ability to control your impulses and focus. Our impulses are what we are doing. Impulse means it is something which can be easily it's the sensations, it's the sense organs, so we that we touch, that we see, what we watch, what we touch, what we talk. That is the that is impulses. So we just need to control our impulses and get to the work, to get the work done and achieve our goals. Control our impulses and focus on achieving your goals, achieving the goals. We should have to focus for achieving the goals. Defining self discipline. So, what is self discipline? Delaying gratification, focusing on priorities, managing emotions. So, there are three things in self discipline. The most important thing is the most important things are delaying gratification. Like we should have to delay the gratification which we are doing. If in simple terms, if I say that we just need to delay the gratification, if we are using mobile phone, we should not use at the high level. We should have to quit some at some time for the gratification. What is the gratification is, it means a pleasure. If we use the phone, if we play the game, if we watch a video, so it will get we will get pleasure. So we are just removing that pleasure, so we are delaying that pleasure. We are not just using instant gratification. We are not using instant dopamine spike. We are just focusing on the delaying gratification, by which we can easily can delay our gratification with the help of reading books, with self improvements. If we do regularly exercise, we will get to know each and everything. We will delay the gratification, and we will just go to the goal. So that is the self discipline. For self discipline, we need to delay the gratification, like choosing long term rewards over immediate pleasures. It's in simple terms, this is written: choosing long term rewards over immediate pleasure. So next second thing is focusing on priorities. like uh,
like we just need to focus on our priorities, like what we need to do in that day. Uh, whether whether we need to whether we need to uh, do exercise or praying to God or something else. We just need to get clarify for priorities, like what we need to do. Just I'm just telling of a one homework for you guys. Just take out one paper and pen and just write down 25 things you need to do in your life, like as you are using as you taking as you as a weapon, as a weapon. So we are just as a weapon or something that is used. So we are just use yourself, what you can do in your whole life, like just you need to write the point, like 25 things, traveling to the world and making money and good habits, like building good habits or something else, and building houses and buying some properties, all that shit gonna write on the paper, so that you can able to clarify what you need to do in your life exactly. So this is not the case, this is not the part. After writing those 25 things, you need to uh, be you need to cut out 20 things which are not usable for your life. You just need to focus on the 5 things that you are most focused. You like if you are not if you're not following that 5 things, it means you are wasting your life, like you will regret in your 30s, in your 40s. So I'm just awareing yourself, awareing you that if we get clarify with our priorities, we will get to know, we will get clarity among, and we will just work with ourselves. So that's the thing. We need to ignoring distraction and staying committed to your goals, priorities is the main thing. It's the most important thing in your life. Like if you get clarity about your priority, you will focus on that exact thing. And the third most important thing is managing your emotions. I don't know about that much of managing emotions. Uh, I'm just using to with the emotions, uh, to be fair, to be honest, I don't know about much about managing emotion. I'm going through with the this managing emotions problem. Just in this slide that is written as controlling impulses and staying calm under pressure. So with this if we want to manage our emotions, we just need to focus on our breaths, like inhale and exhale. When we are breathing, just we need to focus on your like air. The air passes through your nose and just going out the nose. Just to take a second. So what we are talking about, managing our emotions. So the main thing is we just need to focus on breaths. हम जब सांस लेते हैं तो हमारे सांसों के ऊपर कंट्रोल अगर आ गया, तो हमारे इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल आ सकता है. क्योंकि मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ, रीज़न वाई, हिंदी में सबसे ज़्यादा हमको समझ में आता है. लाइक इंग्लिश को हटा दो, इंग्लिश को हटा दो, सबसे बेस्ट थिंग जो है हमको हिंदी में, और इंग्लिश में समझ में आती है ज़्यादातर चीज़ें, ताकि मैं भी और इलेबोरेट करके आपको समझा सकूं और फ्लुएंसी ला सकूं मेरे अंदर भी. तो मैं ये एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ जिससे कि मुझे फ्लुएंसी जनरेट हो सके. तो इमोशंस को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका जो है वो इनहेल और एक्सहेल, जो अपनी जो ब्रीथिंग है उसमें हम ज़्यादा फोकस कर पाएंगे. हम ब्रीथिंग जो हमारे अंदर एयर अंदर आ रही है लंग्स को टच होकर, और नोज़ के जो नोज़ में जो अंदर क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग जो एयर आ रही है उसको, और आउट इन एंड आउट को, जो अगर हम उस चीज़ को महसूस करके उस चीज़ को महसूस करेंगे और हम उसको जानेंगे, तो हम जहाँ तक मुझे मालूम है कि हम जब काम हो जाएंगे 6 to 7 6 से 7 बार हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे, डीप ब्रेथ्स लेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे हम 6 से 7 बार, तो हम काम हो जाएंगे.
कौन सी भी सिचुएशन रहो, लाइक प्रेशर की सिचुएशन रहो, तो अगर हम प्रेशर में आ रहे हैं, लाइक हम चीज़ों को टाल रहे हैं, तो अगर हम ये 7 बार अगर हम ये चीज़ कर लेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे वो टाइम पे। लाइक हमारे इमोशंस क्या होते हैं, वर्क करना होता है, जब हमको जब जिम जाना होता है तो हम जिम को नहीं जाते। रीज़न वाई वी आर नॉट गोइंग टू द जिम, वाई बिकॉज लाइक हमारे इमोशंस हमारे अंदर कंट्रोल में नहीं है। लाइक हमको वो चीज़ करना है बट हम नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न यही है कि हमें वो चीज़ करना नहीं दिल बोल रहा है। तो इस वजह से अगर हम वो 7th डीप ब्रीथिंग कर लेंगे तो हम जिम हमारा जो मेन जो गोल है उससे हम भटकेंगे नहीं, उस वही गोल पर हम जा सकेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ ऑल अबाउट सेटिंग अचीवेबल गोल्स। सो देखिए सिंपल सी बात है, अगर अगर हम क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं और हम डायरेक्ट फर्स्ट हमारे को बॉलिंग करना भी नहीं आता और बैटिंग करना भी नहीं आता, हम बैटिंग करना भी नहीं आता, हमको बैट पकड़ने तक नहीं आता, हम बोल रहे हैं कि विराट कोहली बनूंगा, बोले तो नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। लाइक दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो हमें एक अचीवेबल गोल, हाँ हमारे आपके माइंड में वो चीज़ रहना चाहिए। लाइक आइडल आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम लाइक विराट कोहली, लाइक रोहित शर्मा, लाइक जडेजा, like Vishwanand Anand, like in chess, in other areas, in other sectors also, like for business purpose, like Dhirubhai Ambani, he was the most greatest like इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे पहले। उनकी जो आइडियोलॉजी, उनके जो सोच, उनके जो विचार और उनके जो काम जो है, उनकी वजह से अम्बानी फैमिली ऊपर आए। तो ऐसा माइंडसेट बनाना चाहिए। बट हमारे हमको गोल सेट करना चाहिए। लाइक हमें एक अचीवेबल गोल जो हम अचीव कर पाएंगे। लाइक अभी डिसिप्लिन तैयार करना है तो हमें 50 डेज़ का टारगेट बनाना है। 50 डेज़ के अंदर हमें डिसिप्लिन होना, ये पॉसिबल नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर हम 3 डेज़ लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक बेसिक, मतलब हम बहुत ज़्यादा बेसिक में जाकर अगर हम स्टार्ट करेंगे, तीन दिन के लिए मुझे रोज़ एक सेशन को अटेंड करते जाना है, तो तब जाकर स्मॉल हैबिट से ही हमारी बिग हैबिट बनती है। लाइक अगर हम अभी मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास बिल्कुल भी ज़ीरो डिसिप्लिन है, हम ज़ीरो पर है, तो हम यहाँ पर अपनी जो पावर है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। लाइक व्हाट वी कैन से, वो पावर का वो उस पावर को बढ़ाने के लिए हमें सिंपल सी चीज़ करनी होगी। हमको एक मिनट तक वो चीज़ करेंगे तो मतलब अचीवेबल को, लाइक 1 मिनट हो गया, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, लाइक एक दिन का गोल बनाओ आप। अचीवेबल मतलब वो चीज़ अचीव करो आप। लाइक 1 घंटे में क्या करना है, एक घंटे में क्या करना है आपको, ब्रॉड आइडिया लगाओ, ये 1 घंटे में मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी इससे पहले से बेटर रहे। तो हमारे को ऐसा सोचकर आगे बढ़ना है। तो डिफाइन योर विजन, लाइक हमारा विजन क्या है, लाइक व्हाट डू यू अल्टीमेटली वांट टू अचीव, हम आपको अल्टीमेटली क्या अचीव करना है। लाइक यू वांट टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर, यू जस्ट वांट टू बिकम लाइक इफ़ यू आर टेलिंग, अगर आप बोल रहे हो कि आपको मिलियनर बनना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लाइक दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। जस्ट वी नीड टू, हमको मालूम होना चाहिए कि हमको करना क्या है। लाइक it is possible. Like if you want to become a billionaire, if you want to become a millionaire, it's okay, good, that's it. But अगर हम ये गोल को अगर हम रखेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। हमको एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना है, आई मीन प्रोफेशन, नॉट अ गोल। लाइक विजन, व्हाट इज़ योर विजन, लाइक व्हाट इज़ योर अल्टीमेटली, लाइक व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। लाइक हम आपको अचीव करना है, यस मटीरियलिस्टिक गोल आई नो, बट यू वॉट लाइक रियलिस्टिक गोल, दैट इज़ प्रोफेशनल गोल, वॉट लाइक आपको अचीव करना क्या है एक्चुअल इन योर लाइफ। सो you just need to know whether it is possible, like it is. So what is your vision, like if you want to become an entrepreneur, but just be clear about it. So which entrepreneur you just want to become, like there is so much entrepreneurship are there, solopreneur, like single person,
only doing a lot of things, multiple simple like another things are there. We just need to know about which entrepreneur we want to become. सो द सेकंड थिंग इज़, अगर हमको कुछ बनना है, लाइक ब्रेक डाउन गोल्स, आपके गोल्स क्या है? आपको गोल्स लाइक आपका विजन मालूम होगा कि मुझे एक सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, ये बात बैठ गई। सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, ये बात बैठ गई। सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है, सबसे बड़ा इंजीनियर बनना है, सबसे बड़ा लॉयर बनना है, सबसे बड़ा पायलट बनना है, ये हमारे एक विजन होगा कि मुझे यहाँ पर जाना है, एक मेरा एक रास्ता है, एक मेरी मंजिल है, उसको पाना है। तो ये बात हो गई। सेकंड चीज़ क्या है अचीवेबल गोल्स में? ब्रेक डाउन गोल्स, मतलब हमको ब्रेक करना है गोल्स को। लाइक हाँ, अब हमको विजन मालूम हो गया, तो अब स्मॉलर गोल्स, मैनेजेबल स्टेप्स टू रीच योर विजन। तो हमको छोटे छोटे गोल्स सेट करना होगा। लाइक अब हम यहाँ पर है, हमको ऊपर जाना है। लाइक हम फर्स्ट स्टेप पर है, तो हमको 10th स्टेप पर जाना है, 12 स्टेप पर जाना है, 100 स्टेप आपका विजन है, तो आप फर्स्ट स्टेप पर अटके हुए हो, तो आपको सेकंड स्टेप पर जाना है। तो सेकंड स्टेप के लिए आप क्या क्या कर सकते हो वो डिसाइड करो। आप डायरेक्ट 100th स्टेप पर नहीं पहुंच सकते। लाइक इफ़ यू कांट जंप ऑल्सो, दिस इज द रियलिटी, यू कांट जंप टू द 100 स्टेप फ्रॉम बाय स्टैंडिंग फर्स्ट स्टेप। लाइक हम फर्स्ट स्टेप पर रहकर भी ऊपर नहीं पहुंच सकते, ये गलत फहमी है हमारी। हम जंप नहीं कर सकते, हमको सेकंड स्टेप पर पहुंचना है। सेकंड स्टेप पर आप कैसे पहुंच सकते हो? अगर आपको बिजनेस करना है, आपको बिजनेस करना है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च करना होगा कि आपको करना क्या है। लाइक लोगों की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको अंदाज़ा होगा, रिसर्च इज़ द मेन थिंग। रिसर्च से ही आप स्टेप्स बढ़ाओगे। लाइक इस रिसर्च से ही आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल है, इस चीज़ का डिमांड है, ये चीज़ चलेगी या चीज़ नहीं चलेगी, ये कौन सी मार्केट में चलेगी या कौन से लोग से चलेगी, ये सब आपको कहाँ पर मिलेगा? रिसर्च से मिलेगा। तो अगर आप रिसर्च स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, मैं एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आप लोग को कर रहा हूँ, अगर आप कौन सा भी वर्क करना चाह रहे हैं, आप कौन सी भी चीज़ करना चाह रहे हैं, उसके पीछे आप रिसर्च करो। अगर आप रिसर्च करना सीख गए तो मैं समझता हूँ आप 50 to 60% वर्क कर चुके हों, सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप रिसर्च कर लोगे ना, तो कहीं मेरे अंदाजे से, लाइक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप रिसर्च कर लोगे ना किसी भी प्रॉब्लम की, तो आप 60 to 70% ऑफ प्रॉब्लम वहीं आप सॉल्व कर लोगे। सिर्फ आपको 30% इम्प्लीमेंट करे बाद में ही मिल जाएगी। तो यही एक शक्ति है। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक क्या था? ब्रेक डाउन गोल्स, मतलब गोल्स को ब्रेक करना है, ब्रेक करना है, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। तो ये यहाँ पर ये है कि मतलब स्मॉल स्मॉल गोल्स। लाइक आज मुझे अभी देखिए, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करने के लिए आधा घंटा निकालो दिन का, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लियो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट जो है, सेट डेडलाइंस। तो हमको डेडलाइन सेट करना है, टाइम फ्रेम टू कीप योर अकाउंटेबल एंड मोटिवेटेड। सिंपल है, डेडलाइन ज़रूरी है। लाइक अब मैं आज बोल दूँ, मतलब आज आपको बोल दूँ कि आपको, अब मेरे ही पर्सपेक्टिव से बोलूँगा कि मुझे अगर मुझे मेरे को वीडियो बनाना है, क्या इससे काम हो जाएगा? नहीं होगा। मुझे पीपीटी ओपन करना पड़ेगा, मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके मुझे बात करना पड़ेगा, तब जाकर मैं वो करूँगा। तो और मैं उस चीज़ को टालते रहूँगा। अगर मुझे वीडियो बनाना तो मैं टालते रहूँगा, अरे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल में 10 दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे। तो अगर हम एक रोड रहती है ना, रोड के बीच में अगर स्पीड ब्रेकर डाले, तो हमको एक आइडिया रहता है कि हमको वहाँ पर गाड़ी को स्टॉप करना है। तो वैसे ही अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो अगर आप एक डेडलाइन डाल दिए कि मुझे
आज की डेट में, लाइक फॉर एग्जांपल 16 ऑफ फरवरी 4 PM से पहले मुझे इस चीज़ को कर लेना है, तो मैं ये डेडलाइन डाल दिया तो मैं उससे पहले कंप्लीट कर लूँगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लगातार नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको सब क्लियर हो जाएगा कि आपको लाइक अगर देखिए मेरे इनपुट तो बहुत मैं खुद से मैं इनपुट अच्छा दे रहा हूँ, तो 100% दे रहा हूँ। आपका भी काम बनता है ये इनपुट को गवाए बिना आप भी खुद नोट्स बनाकर और उसको रिफ्लेक्ट करिए। 10 मिनट्स सुनिए ये वीडियो को और रिफ्लेक्ट करिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको करना क्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड। ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, दिस इज़ द मोस्ट प्रॉब्लम, लाइक पूरे युवाओं की प्रॉब्लम है। अगर हम इस चीज़ को टैकल कर लिए तो हम जीत चुके हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब बहुत ज़्यादा टालने की आदत, कल करेंगे, आज करेंगे, कल कल परसों परसों, वो कल में महाकाल हो जाता हो। तो इस चीज़ को अवॉइड करिए और ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करिए। आप अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेस योर प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करिएगा, मतलब टालने की आदत क्यों हो रही है, रीज़न की। उसके बाद टास्क को ब्रेक डाउन करो, मतलब पहले भी मैं बोला कि अचीवेबल गोल्स जो है हम आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, छोटे छोटे पीसेस में बांट देना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एक आइसक्रीम की ब्रिक लिए, उसको हम स्मॉल 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 पीसेस में कट करें तो तभी हम गेस्ट को सर्व कर पाएंगे। एक ही डायरेक्ट हम लेके डाल देंगे तो इट्स अ ब्लंडर ब्रदर, वी दे कांट डू। अगर और सिंपल वे में मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँगा, सो एक हमारा एग्जांपल ले लेंगे हम। अगर हमको एक बनाना खाना है तो क्या हम पूरा एक साथ ही ले लेते हैं या हम स्मॉल स्मॉल थ्रस्टिंग में हम लेंगे, लाइक स्मॉल स्मॉल पीसेस में हम लेंगे। ऑब्वियसली हम स्मॉल स्मॉल पीसेस में 5 to 6 पीसेस में हम ये एक बनाना कंप्लीट कर लेंगे। तो हमको स्मॉल स्मॉल टास्क को ब्रेक करना है, मतलब तोड़ देना है टास्क को। हमको करना क्या है जिससे कि हमारा जो टेंशन है वो दूर हो जाए कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है। अगर हम हमारे को मालूम हो गया तो हम ऑब्वियसली कर लेंगे। सेट टाइम लिमिट्स, पहले भी बोल दिया हूँ अब भी बोल रहा हूँ, टाइम लिमिट का ये मतलब यही है कि एक ही फ्रेम में करो। मतलब 10 मिनट में काम होना है तो 10 मिनट में ही होना, उसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट ये है कि रिवार्ड योर सेल्फ, लाइक ख़ुद को रिवार्ड भी दो। अगर वो चीज़ काम कर लिए तो उसके लिए एक रिवार्ड दो कि मैं एक टॉफ़ी खाऊंगा, एक चॉकलेट खाऊंगा, इसके बाद एक रिवार्ड दोगे तो तुम्हारा जो भी टास्क रहेगा वो कंप्लीट होगा। खुद के ब्रेन से खेलो और जीतो। नेक्स्ट, बिल्डिंग हैबिट्स एंड रूटीन्स। हैबिट्स और रूटीन्स बनाने के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है, स्टार्ट स्मॉल, कंसिस्टेंसी इज़ द की एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस को ट्रैक करो। अगर हैबिट्स और रूटीन्स बनाना है तो ये 3 चीज़ें करना ज़रूरी है। स्मॉल मतलब मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आप अगर स्मॉल स्टार्ट करें, अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप चढ़े तो आपको फ़ायदा होगा। और कंसिस्टेंसी इज़ द की, कंसिस्टेंसी अगर आप कंसिस्टेंट वे में आप रेगुलर करते गए तो वो हैबिट बन ही जाएगी, रूटीन बन ही जाएगा। ट्रैक योर प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। हम यहाँ थे, हम यहाँ आगे यहाँ जाना है, सिंपल सी बात है। तो छोटा छोटा बांट देना है हमारे, मतलब बहुत छोटा स्टार्ट करो, 1 मिनट से स्टार्ट करो। आप समझ रहे होंगे 1 साल नहीं ब्रो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट रोबोट्स। सो अगर हम इस चीज़ को अपने अंदर डाल लेंगे कि अगर हम 1 साल के अंदर करेंगे तो वो चीज़ प्रोक्रेस्टिनेशन में जाएगी। अगर हम 1 मिनट में करना चाहेंगे तो हम कर सकेंगे, लाइक हम स्टार्ट कर सकेंगे। 1 मिनट नहीं, 1 मिनट में तो नहीं होता।
अगर हम छोटी चीज़ से शुरुआत करेंगे तो हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम स्टार्ट कर पाएंगे सिंपल सी चीज़ें, अगर अगर हम रोज़ रेगुलर करेंगे, डेली प्रैक्टिसेस करेंगे, तो हम कंसिस्टेंट रह पाएंगे। सॉरी, ट्रैक योर प्रोग्रेस। सो हम हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं। मेंटेनिंग मोटिवेशन। मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए हमें 4 स्टेप्स, 4 पिरामिड्स ऑफ 4 है ये। यहाँ पर हमको विजुअलाइज सक्सेस को विजुअलाइज करना है। फर्स्ट थिंग, फोकस ऑन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को फोकस करना है। और फाइंड मीनिंग एंड पर्पस, सराउंड योर सेल्फ विथ सपोर्ट रहना ज़रूरी है। ये अगर 4 चीज़ अगर होंगे तो हम मेंटेन कर पाएंगे हमारी मोटिवेशन को। सक्सेस को विजुअलाइज करके, प्रोग्रेस को फोकस करके, और हमारा खुद का सही मीनिंग और पर्पस को जानकर, और खुद मतलब सपोर्ट के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स, योर नेबर्स नॉट नेबर्स, लाइक your competitors also is your motivation. So just mind it and just work hard and just start working. That's your motivation. So that's overall 4 motivations are there, and we just need to focus on that 4 motivations. Four things in motivation. Visualize success को visualize करना है। लाइक हमको एक विजुअलाइज करना है कि हम एट लाइक अगर हमारा गोल व्हाट इफ़ वी अचीव दैट गोल, और प्रोग्रेस को फोकस करना। लाइक मैं पहले यहाँ था, अब मैं यहाँ पर हूँ, तो एक प्रोग्रेस आ चुकी है, तो ये प्रोग्रेस को फोकस करना ज़रूरी है। और मीनिंग एंड पर्पस, हमारा खुद का मीनिंग, लाइक मीनिंग है क्या, मतलब क्या है, हम किस वजह से काम कर रहे हैं, उसका मीनिंग जानना है, और पर्पस भी जानना ज़रूरी है। और सराउंड योर सेल्फ विथ सपोर्ट विथ हेटर्स ऑल्सो। लाइक हेटर्स से भी अगर आप रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और इनकरेजमेंट आएगा मेंटर से। मेंटर्स भी रख सकते हैं आप। तो ये 4 थिंग्स है जो मोटिवेशन को मेंटेन करते हैं। हैंडलिंग सेटबैक्स एंड फेलियर्स। अब ऑब्वियसली इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, सो वी विल गेट failures and setbacks. So acknowledge and accept, acknowledge करो, accept करो that thing. This is Thomas Alva Edison, who is the inventor of bulb, and who tried 1,000 times in his life for building a single bulb. He tried 1,000 times. 1001th time he succeeded. So the main thing is, अगर हम ट्राई करेंगे, नॉट लाइक फेलियर सबसे बड़ी चीज़ है जिससे कि हम सक्सेस पर पहुंचेंगे। तो हमको ट्राई करना नहीं छोड़ना है। हम करेजियस होना ज़रूरी है। हम अगर गिर गए तो फिर उठ के फिर जाएंगे, गिर गए फिर उठ के जाएंगे, गिर गए फिर उठ के जाएंगे, तब जाकर हम इस चीज़ को हासिल कर पाएंगे। और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। एक्सेप्ट अगर हम कर लेंगे ना, ये फेलियर था, दिस इज़ माई फेलियर, यस आई एम अ फेलियर, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, एंड एट दिस टाइम आई विल ब्रेक, मैं फोड़ दूंगा ये साल। तो ये स्पिरिट होना चाहिए हमारे अंदर। और लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, तो हमारे मिस्टेक्स से लर्न करना कि अगर हम ये चीज़ से फेल हुए, लाइक हम चेस है या फिर क्रिकेट है, चाहे हम खो खो खेल रहे हो, चाहे हम बास्केटबॉल खेल रहे हो, चाहे हम वॉलीबॉल खेल रहे हो, चाहे वो हम बिज़नेस खेल रहे हो। बिज़नेस भी एक गेम है। अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर हम एक हैबिट बिल्ड करना चाह रहे हैं, या फिर हम स्किल बनाना चाह रहे हैं, वो हम नहीं अचीव कर पाए, तो रीज़न क्या होगा? उस चीज़ से सीख के वो चीज़ को दोबारा नहीं करके हम आगे बढ़ना, उस चीज़ को अवॉइड करके हम आगे बढ़ना, उस चीज़ से हम if you analyze your mistakes and implement and avoid your mistake in next step, you will succeed definitely. So the third thing is refocus and recommit. सो जस्ट उसके बाद फिर से आपको रिफोकस करना पड़ेगा और कमिट करना पड़ेगा खुद से कि मैं कर लूँगा। बिलीव सिस्टम सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे तो आप कैसा सक्सीड हो पाओगे? तो ये चीज़ थे, आपको बताना था। कंक्लूजन यही है कि अनलॉक योर पोटेंशियल। आपके खुद के
पोटेंशियल को आप अनलॉक करो। कैसे करोगे? सेल्फ डिसिप्लिन से। तो हम इतने चीज़ें जो जो भी है उसको अगर मैं समराइज़ करूँ, अगर मैं समराइज़ करूँ तो मैं एक ही पॉइंट बोलूँगा, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट स्मॉल, सेट डेडलाइंस, start small, set deadlines, uh, or break your goal into small pieces, and if you fail, you just stand up and just work. If you fail, stand up, just work. Fail, stand up, just work. If you fail, just stand up and just work. वर्क रिफोकस करो, आगे बढ़ो, डैट्स इट। ये कंक्लूजन है इस सेशन का। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, दिस इज़ वैल्यूबल सेशन, एंड दैट्स इट फॉर इट। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। Signing off, Wazir Ali, BBA from Avinash College. Thank you.